Once again, good evening to all. We have studied. When I say good evening, you have to also wish the same good evening or very good evening. Okay? I think one student is missing today. Which one? That is from class 7. Okay, so in our last class we have studied about pronoun, in which we have studied the definition of pronoun, 10 kinds of pronoun, and among that 10 kinds of pronoun we have already discussed 5 of them. How many? 5 of them. So today we will discuss the rest 5. Today we will discuss the rest 5. Before starting the class, I want to ask, have you completed the homework that I have given? Have you completed the homework that I have given? If you have not completed today, I will call Soumya Jha sir and I tell him that sir, I posted letter of in Telegram page, but none of the student has completed. Yeah. Are you in the Telegram channel? No, sir. Are you in the Telegram channel? So you must have seen. I have sent 8 questions. Have you seen? So that's very bad. If you learn a thing in a class and if you will not practice it at your home, then you will learn nothing. Very simple. Your total outcome and total result is 0. Whatever we learn, it all come from practice, and if you practice little, you will receive little. If you practice a lot, you will receive a lot. So in my class, I have seen that your practice is rare, means seldom, means hardly. So your gaining is also hardly. So once again, you go at your home and you look into your Telegram page. I have also posted in a WhatsApp group. Go. It is also a WhatsApp group? No. At first we put in a Telegram, then again we put in a where? WhatsApp group. So you can go and you can search in your Telegram page. You will receive the homework and you will try to complete it at your home, okay? And you have not completed today, so tomorrow, when in my next class I will come, I will check your homework. Yes. And if it has the same excuse, if you have the same excuse, then I will try to give you homework in the class. I will forget all the groups. I will write that homework there and you have to complete from your home, okay? So let's start. At first, before starting the class, I want to ask the definition of pronoun. Who will answer? Noun. What is a pronoun? A word is a noun which is used in place of a noun. A word that is used in place of noun or instead of noun is called a pronoun. Sit down. I have also written another definition of pronoun. Will you answer the second definition? A pronoun is a word that is used to instead of noun. It is the first definition. Can you define the second one? A pronoun is used to check the repetition of noun. Very good. A pronoun. Stop repetition. Yeah, to check or to stop the repetition of a noun. A pronoun is a word that is used to check or stop the repetition of a noun in the sentence. Okay, sit down. Stand up. How many kinds of pronoun are there? 10. There are 10 kinds of pronoun. Will you name any 5? Personal, Personal, demonstrative, demonstrative, distributive, distributive, relative, relative, reciprocal. Sit down. Now you answer the rest 5. Reflexive, emphatic, personal, it is done. Demonstrative. It is also done. You are trying to cheat. Don't try to copy. Yes. Rest 3. Sit down. Reciprocal. Reciprocal, Indefinite. indefinite, interrogative. She hasn't answered interrogative. Sit down. Okay. Sit down. Now, at first close your notebook. Your notebook should be closed. Will you tell me which 2 terms came in reciprocal pronoun? Which 2 terms
will come in reciprocal pronoun, or what will come in reciprocal pronoun? Reciprocal pronoun में क्या आएगा? Each other and one another. In reciprocal pronoun, each other and one another, it will come. Okay, they will come. Sit down. Each other is used for So 2 person. two person, and one another more than two. More than two means 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sit down. Sit down. Next. How many cases are there? 3. 3 cases. No, sir, 4. Okay, name. Sir, nominative case, Very good. subjective case, Nominative case is also known as subjective case. So it is a first. Second, objective, objective also known as vocative. Objective also known as vocative. Next one. And the third one is a possessive. Third one is a possessive. In third, possessive adjective and possessive pronoun will come. Okay? Sit down. Yeah. How many personal pronouns are there? 7. There are 7 personal pronouns. Will you name them? I, we, you, he, she, it, they. Okay, sir. How many kinds of personal pronoun are there? 3. Okay, name them. First person, second person, third person. What will come in first person? So I, me, What will come in second person? you, And what will come in third person? he, she, it, they. Okay, sit down. What is first person? person that will speak. One who speaks. That's it. A person who speaks or one who speaks. One who speaks is called first person, or in first person I and we will come. Okay? And what is second person? One who listens. One who listens. They are called second person. And what is third person? Person that is talking Whom we talk about. Whom we talk about. Whom we talk about. They are known as third person. He, she, it, and they will come. Okay? Sit down. Now you have to answer reflexive or emphatic pronoun. What will be the reflexive or emphatic pronoun of I? I, my. You have to answer reflexive pronoun. What will be the reflexive pronoun of I? Sit down. Yes. But myself, We, sir, we का बोलेगा हर्ष. we का हर्ष. We का माउंट एवरेस्ट बोल दो ना. We का He होगा, he. माउंट एवरेस्ट बोल दो. Himself. हाँ, जॉन सीना बोल दो. You have answer 4 times for all where all. Ourselves को याद आ गया. Ourselves. Ourselves. देख लिए तब तक. वाह, होशियार है आप वैसे भी. आपको लगता है कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बट फिर भी हम देख रहे हैं. Ourselves. Okay. Sit down. I know you have remembered. Okay. You are fully charged. Okay. You. Yourself, your, or yourself. Both. Okay. He, Himself, she, herself, it, itself, they. themselves. Very good. Sit down. Now you have to answer possessive pronoun. Okay. What will be the possessive pronoun of I? Mine, Mine. We, ours, you, yours. yours, He, his, his, she, hers, hers, it its. कुछ नहीं होगा. does not form. Okay. They, Them, theirs. yes, You have also not learned clearly. Okay. Now it's your turn. Now you have to answer objective case. Objective case. Okay. What will be the objective case of I? So today, okay, sit down. Today I have asked. Okay, sit down, sit down. Today I have asked so many questions, and the result that I get that you are half baked only. Okay, all of you are half baked. आप लोग अभी आधे पके हुए हो, पूरे पके हुए नहीं हैं. मीन्स याद करने का मतलब है कि घर से याद करने के लिए एक दो बच्चे जो हैं घर से पूरी तरह से पढ़ करके आए हैं, और बच्चे जो है यहीं पढ़े हैं और यहीं का यहीं हमको रिसीव करा रहे हैं. यानी सीखे वो कुछ नहीं है. जब तक आप घर पे इसको रिवाइज नहीं करेंगे, आपकी रिजल्ट 0 होगी.
और फिर आपके कारण से ना ये कैरियर क्या होने लगेगा, स्पॉइल होने लगेगा। अरे फलानवा का लड़का तो जाता है, कहाँ कुछ पढ़ता है, कुछ सीखता तो है नहीं। अगर आप सीखेंगे तो आपसे आपके आसपास का माहौल बदल जाता है। आप सीखेंगे, आप जिस वर्ग में बैठेंगे उस वर्ग में अगर इस चीज़ों का जिक्र होता है बताएंगे तो आपके लिए लोगों का दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा। तो अगर आप जिस चीज़ की भी पढ़ाई कर रहे हैं बाय हार्ट बाय सोल करें, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को कहीं पर डिलीवर करते हैं तो आपके प्रति लोगों का पर्सपेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, आउटलुक सब बदल जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमको अच्छे नज़र से देखें, तो अच्छे नज़र से तभी देखेंगे जब हम अच्छा करेंगे। गलत करें और तब भी सोचें कि हमको लोग अच्छे नज़र से देखें, ये संभव। दिन में घर में बैठ कर के 8 घंटे टेलीविज़न देखे और फिर भी सोचे कि मम्मी और पापा हमसे खुश रहें, तब तो रिजल्ट आपके हाथ में। क्या? लेट्स सी, टुडे वी विल रीड डेमोन्स्ट्रेटिव। विच वन? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. Demonstrative pronoun. This, that, these, those. This, that, these, those, such are called demonstrative pronoun. Is that clear? This, that, these, those, such are called demonstrative pronoun. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें आप में बाद में 2 चीज़ें और ऐड हो जाती है, आपको अभी क्लास में नहीं पढ़नी है। असर्टेन एंड सर्टेन क्या ऐड हो जाएगी बुआ? असर्टेन एंड सर्टेन। अगर आपको मन करे तो आप लिख सकते हैं, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके। और आप आर्टिकल्स जानते हैं? आर्टिकल्स भी जो है, जो 3 है, ए एंड द, actually they are articles, we read differently but they are part of demonstrative pronoun, demonstrative adjective, not pronoun, demonstrative adjective। okay। अब इसमें एक है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और सेम है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, घबराना नहीं है। दिस, दैट, दिस, दोज, सच, सर्टेन, असर्टेन एंड आर्टिकल्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये ध्यान रखेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। क्लियर? ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? एडजेक्टिव, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है और एडजेक्टिव रहेगी तो उसके बाद नाउन आएगी। जैसे अगर इसी के बाद नाउन नहीं आएगी तो ये प्रोनाउन है, आ गई तो ये एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। दिस इज माई बंगलो, दिस इज माई बंगलो। अब यहाँ पे दिस है और दिस के बाद इज है, यानी वर्ब है। क्या है ये? वर्ब। तो दिस के जस्ट बाद नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, इसलिए ये हो गई आपकी प्रोनाउन। क्या हो गई? और बंगलो क्या है? नाउन है। बंगलो क्या है? और नाउन से पहले माई है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? और एडजेक्टिव में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव कल पढ़े थे हम लोग। इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से लिख दें, दिस बंगलो इज माइन, दिस बंगलो इज। अब यहाँ पे पूरा दिस है, दिस के बाद क्या है? बंगलो। नाउन हो गई, इसलिए ये क्या हो जाएगी? और एडजेक्टिव में ये हो गई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये माइन हो गई, ये हो गई पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गई? क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है कि दिस और दैट के बाद, दिस दैट के बाद आप जो दिस दैट के बाद यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो हो जाएगी आपकी सिंगुलर। क्या हो जाएगी? और इसके साथ जो नाउन आएगी वो भी आएगी आपकी सिंगुलर। तो सीखने की बात यही है कि दिस दैट के बाद जो वर्ब और नाउन यूज करेंगे सिंगुलर यूज करेंगे। इसी के अपोजिट में अगर हम दीज और दोज का यूज करें, किसका? दीज और दोज का यूज करेंगे तो आपकी वर्ब बन जाएगी प्लूरल, और इसके लिए जो नाउन भी यूज करेंगे वो भी बनेगी प्लूरल। अब अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं दीज आर मेयर एक्सक्यूजेज, दीज आर मेयर। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप होमवर्क बना करके आए हैं,
तो आप कहते हैं सर हम तो टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं हैं, तो दीज आर मेयर एक्सक्यूजेज। ये झूठी बहाना है क्या ये? तो सर अक्सर लेकर मिल जाता है। मेरे को पता है कि आप ज्वाइन नहीं हैं, ये ज्वाइन है, ये ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है। मम्मी ने दीज आर मेयर एक्सक्यूजेज, दीज आर मेयर एक्सक्यूजेज। ये केवल क्या है? झूठी बहाना है, हैं? अब यहाँ पे देखिए बुआ, यहाँ देखेंगे ये है दीज, क्या है? दीज। क्या इसके बाद नाउन है? वर्ब है। क्या इसके बाद? वर्ब है। इसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और यहाँ पे देखिए, यहाँ दीज है इसलिए हम इज का यूज नहीं किए। किसका यूज किए? आर का। और यहाँ पे एक्सक्यूज का यूज नहीं किए। किसका यूज किए? एक्सक्यूजेज का। क्योंकि इसके साथ ये प्लुरल है तो ये भी प्लुरल चाहिए, और इसके बाद जो नाउन होंगे सारे प्लुरल होंगे। समझ में आ रही है ना? अभी तो हम इसका यूज बताए हैं, ये दोनों प्रोनाउन के रूप में यूज है। किस रूप में है? प्रोनाउन के रूप में। इसका आप चाहें तो एडजेक्टिव के रूप में भी बना सकते हैं। किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। देखते चलिए, अगर दिस दैट के जस्ट बाद नाउन आ जाए, दिस दैट के बाद जस्ट क्या आ जाए, तो आप जानते हैं कि नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होनी चाहिए आपकी? सिंगुलर। और इसी के साथ अगर दीज दोज हो, क्या हो? दीज और दोज हो, तो इसके साथ भी आप चाहेंगे तो क्या करेंगे? नाउन, प्लुरल, वर्ब। अब इन दोनों केसेस में बच केवल सच जा रहा है। क्या बच जा रहा है? सच। ये बच गया ना रे? इसको अलग लिख देता हूँ, इससे एग्जाम्पल बता देता हूँ। I have never faced such questions. I have never faced such question. I have never heard such a reply. I have never heard such a reply. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जब ये सच जो है, सच के साथ हम क्वेश्चंस का यूज किए। सच के साथ किसका यूज किए? क्वेश्चन, यानी जो मोर देन वन को डिनोट कर दिया। यहाँ पे हम सच के बाद और रिप्लाई का यूज किए, जो वन को डिनोट कर दिया। तो ध्यान यही रखना है कि सच के बाद अगर हम सिंगुलर लिखेंगे कोई भी नाउन, सच के बाद सिंगुलर अगर कोई भी नाउन लिखेंगे तो उसके बीच में आर्टिकल्स आएगी। क्या आएगी? बीच में आर्टिकल। जबकि डिटरमिनर्स के बाद आर्टिकल्स नहीं आती है। डिटरमिनर्स के बाद आर्टिकल्स नहीं आती है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखनी है, ये डिटरमिनर्स है, लेकिन यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे सिंपल है सच बॉय। सही है कि गलत है? सच बॉय गलत है। सच बॉय क्या हुआ? सच अ बॉय होता है। अरे काम करें ना, आप इससे सेंटेंस बनाकर किसी को दे दीजिए, वो बिना देखे जो है आपको सही कर देगा। और उसे लगेगा सच बॉय सही है, ठीक है। और नहीं तो ये थोड़ा सा है, ध्यान रखनी है, सच बॉय नहीं होती है, वो गलत है। आप लिखिए सच अ बॉय या सच बॉयज। क्या लिखेंगे? या तो आप उसका प्लुरल फॉर्म लिखिए, ना तो सिंगुलर फॉर्म लिखिए। ये कोई फॉर्म में नहीं हुआ। बॉय जो है उसका कोई फॉर्म। नाउन कहता है कि जब भी हम सिंगुलर रहेंगे, हमारे पहले अगर आर्टिकल्स लग सकती है तो आपको लगानी है। यही बात है। तो ये समझ में आ गई? इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। व्हाट आइडिया लिखते हैं या व्हाट एन आइडिया लिखते हैं? तो ये जो है ना, ये जो व्हाट है ये सच के प्रजाति का है। जो व्हाट है ये भी सच का प्रजाति का है, और ये भी डिटरमिनर्स है। और ये भी कहता है कि मेरे पास अगर नाउन आएगा तो इसके पहले एक आर्टिकल्स देना है उसके साउंड के अकॉर्डिंग। हम लोगों को एक कोट्स पढ़ना है। व्हाट पीस ऑफ मैन। हाँ, क्या? कोट्स। QU। व्हाट अ पीस ऑफ मैन। व्हाट अ पीस ऑफ मैन मतलब आदमी जो है, व्हाट अ पीस ऑफ, क्या फिर से भूल गया, रुक जाओ एक मिनट। इसमें ये कोट्स है।
आदमी जो है भगवान का बनाया हुआ सबसे बेहतर नमूना है। तो व्हाट सबसे बेहतर नमूना है, हम लोग नमूना भी तो है ना। आई थिंक वो है व्हाट, मैं भूल गया सॉरी, बट ये ध्यान रखिए ये सेंटेंस यही सही होगी। ओके, व्हाट अ पीस ऑफ मैन, व्हाट अ पीस ऑफ मैन। ओके, नाउ यू कैन राइट। So now we will see distributive pronoun. In distributive pronoun we will also see distributive adjective. Okay. Distributive pronoun. Each, either, neither, each, either, neither, both, each, either, neither, both are called distributive pronoun. Okay, how many times? Each, either, neither, both are called distributive pronoun. और इसी में अगर आप क्या कीजिएगा बाबा, एक वर्ड जोड़ दीजिए एवरी। क्या जोड़ दीजिए? एवरी। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? ईच, आइदर, नाइदर, बोथ, एवरी आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और प्रोनाउन में एडजेक्टिव में अंतर यही है कि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं रहेगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा, और कोई अंतर नहीं है। अब इसके हमको यूज जानने हैं, तो हम लोग ईच का जो यूज है वह किसी भी संख्या के लिए कर सकते हैं। ईच का यूज हम किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए कर सकते हैं। क्लियर है? हालांकि अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो बुक में इसके लिए यूज नहीं है। अगर आप कोई भी ग्रामर उठा कर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ईच का यूज जो है 2 या मोर देन 2 के लिए करना है। मैं कहता हूँ आप 1 के लिए भी करेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे, खास करके किसमें, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में, वहाँ ईच का मतलब प्रत्येक मतलब एक ही का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, ईच का मतलब एक के सेंस में आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ईच का यूज 1 के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब है आइदर, नाइदर और बोथ। क्या हुआ? आइदर, नाइदर, बोथ। तो इसका यूज जो किसके लिए करेंगे? 2 के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? 2 से ज़्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं। किसके लिए? फॉर 2। इसका यूज हम 2 के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? 2 के लिए। अब इसी में क्या होता है कि अगर हमको 2 से अधिक के लिए करना है तो हम एनी का यूज करेंगे अफर्मेटिव में और नन का यूज करेंगे निगेटिव में। अगर मान लेते हैं किसी सेंटेंस में 2 से अधिक का दिया हुआ है जिक्र, तो हमको 2 से अधिक का जिक्र करना है तो हम सबसे पहले या तो ईच का यूज कर लेंगे, नहीं तो हम किसका यूज कर लेंगे? एनी का। अगर नाइदर का सेंस है, निगेटिव है, तो हम नन का यूज कर लेंगे। ये है मोर देन 2 के लिए। किसके लिए? मोर देन 2 के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, पॉजेसिव क्या हो? एडजेक्टिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, तो इसका यूज भी मोर देन 2 के लिए करेंगे। किसके लिए? मोर देन 2 के लिए। ये मोर देन हो गया और ये 2 से अधिक के लिए जो है, 2 के लिए नहीं, 2 से अधिक के लिए किसका यूज करेंगे? एवरी का। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज आर इंटेलिजेंट और इज इंटेलिजेंट। देखिए पहली बात है, हम यहाँ जब इच का यूज करेंगे, इच, आइदर, नाइदर, ये तीनों सिंगुलर है। इच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये तीनों के तीनों क्या है? अच्छा, आप इसको लिख लिए? वेट करें इसको, पहले मैं यहाँ इसको राइट कर देता हूँ, आपके लिए अच्छी हो जाएगी। इसका भी एक डायग्राम बना देता हूँ आपको।
इच, आइदर, नाइदर। अगर इसको हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, किस रूप में? तो प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके बाद आ जाएगी आपका ऑफ, और उसके बाद क्या आ जाएगी? अगर हम इसको प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, कोई डाउट नहीं है, इच, आइदर, नाइदर के बाद आपका ऑफ द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑफ द। प्लस यहाँ पे जो नाउन आएगी वो आपकी आ जाएगी प्लूरल। क्या आ जाएगी? लेकिन इसका असर जो है वर्ब पे नहीं पड़ेगा, वो सिंगुलर ही रह जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, इच, आइदर, नाइदर और एवरी। अब यहाँ पे एवरी भी आ जाएगी ना? क्या आ जाएगी बुआ? अब तो ये एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद नाउन चाहिए ना, तो इसके जस्ट बाद नाउन रहेगी और ये सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? तो वर्ब भी ऑटोमेटिक जो है सिंगुलर होना ही। समझ में आ गई? उसको लिखिए, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें गलत बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसको छांटेंगे, ठीक है? ईच ऑफ द बॉयज़, हमने बताया था ईच के बाद ऑफ रहेगी और द भी रहेगी, यहाँ तक तो ठीक है। बॉयज़ भी रहेगी, नाउन प्लूरल चाहिए। नाउन क्या चाहिए? प्लूरल। लेकिन वर्ब क्या चाहिए बुआ? तो ईच ऑफ द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट नहीं, इज इंटेलिजेंट। अब आप मन में सोचिए कि अब आप क्या यूज किए रहते, इज या आर? मन में सोचिए, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे अच्छा बॉयज़ है तो आर यूज कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखनी है कि अगर इच, आइदर, नाइदर से शुरू होगा तो हमको वर्ब चाहिए सिंगुलर। क्या चाहिए? और ऑफ द रहेगा तो नाउन प्लूरल हो सकता है, ठीक? अब यहाँ पे है आइदर ऑफ द थ्री। क्या आइदर के लिए थ्री का यूज करेंगे? कभी नहीं। हमने कहा कि आइदर, नाइदर, बोथ, ये सब के लिए टू। तो अब थ्री है तो इसको तो हम नहीं हटा सकते, तो हटाएंगे किसको? इसी को। अब थ्री है तो हम इसको नहीं हटा सकते क्योंकि संख्या को नहीं चेंज कर सकते, तो हम आइदर को हटा करके क्या लिख देंगे? एनी। एनी ऑफ द बॉयज़। अब जब एनी लगाते हैं तो यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो भी ठीक, प्लूरल रहेगा तो भी ठीक। एनी और नन के केस में वर्ब डिफाइन नहीं है। एनी और नन के केस में वर्ब डिफाइन नहीं है। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर ठीक, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल ठीक। वर्ब भी सही है, वाज भी सही है। एवरी गर्ल्स, अभी बताया हुआ, एवरी के साथ ये सिंगुलर चाहिए, एवरी के साथ क्या चाहिए? और ये भी चाहिए सिंगुलर, चाहिए कि नहीं? तो एवरी गर्ल्स नहीं, एवरी गर्ल। और हैव नहीं, हैज। हर ड्रीम्स, हर ड्रीम्स। अब यहाँ पे हम एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। किसके रूप में देखेंगे? एडजेक्टिव रूप में। चलिए बुआ यहाँ पे यूज करके बताइए। इच बॉय और बॉयज, हैज और हैव अ विजन। इच है तो इच के लिए बॉय का यूज करेंगे और यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा एक और आते हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें एक चीज़ का तो जिक्र हम किए ही नहीं, बोथ का। बोथ ऑलवेज प्लूरल होगा, उसके लिए वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल। बोथ का मतलब ही होता है दो। क्या होता है बुआ? दो। वो ऑलरेडी डिसाइड कर रहा है कि मेरा मतलब दो है, तो उसके लिए हम कहीं भी सिंगुलर का यूज नहीं करेंगे। बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट।
या यू कैन ऑल्सो राइट बोथ द क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, बोथ क्वेश्चंस आर। इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, ऑफ भी लिखिए तो भी बात वही है, ना भी लिखिए तो भी बात वही है, दोनों केस में ये पुल्लल ही है। हैव यू रिटन? राइट। neither of the five boys, neither of the five neither of the five candidates neither of the five candidates have participated in the game, have participated in the game। अब अभी हमने बताया कि यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर, तो नाइदर कभी भी 5 के लिए नहीं आएगी, नाइदर कभी भी 5 के लिए, कहाँ ध्यान है, नाइदर कभी भी 5 के लिए यूज नहीं होगी, तो हम इसको नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हम संख्या डिफाइन कर रहे हैं, तो संख्या को बदलनी नहीं है। हम बदल सकते हैं इसको क्योंकि ये संख्या को डिफाइन नहीं कर रही है। ओके, तो नाइदर के जगह पे आप नन रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें केवल आइदर और नाइदर में ही संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और किसी में ही सुनेंगे। हाँ देखेंगे, इच में भी देख लेते हैं। एवरी वन ऑफ द टू लीडर्स, every one of the two leaders, every one of the two leaders delivered a डेमागॉग का मतलब होता है भड़काऊ भाषण। क्या होता है भैया? भड़काऊ भाषण। नेता लोग खड़ा होते हैं तो भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। तो एवरी वन ऑफ द टू लीडर डिलीवर डेमागॉग, इसका मतलब है कि उसमें से दोनों के दोनों जो लीडर हैं उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। अब यहाँ पे देखेंगे बुआ, एवरी वन का यूज हम कभी भी टू के लिए नहीं करते, एवरी वन का यूज कभी भी हम टू के लिए नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए ये पुल्लल तो है ही, यहाँ भर्ब पुल्लल का कोई संपर्क नहीं है क्योंकि भर्ब का V2 है, भर्ब का V2 सिंगुलर पुल्लल दोनों के साथ यूज किए जाते हैं। तो अगर आप एवरी वन के जगह पे यहाँ पे आइदर का यूज कर दे, चाहे ईच का यूज कर दे, चाहे बोथ का यूज कर दे, कोई दिक्कत नहीं। टू है, एनी का यूज होगा नहीं, नन का यूज होगा नहीं, एवरी वन का यूज करेंगे नहीं क्योंकि उसका टू से अधिक के लिए करना है, तो आप उसको बना सकते हैं। नाउ यू कैन स्टॉप। नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हु, whom, what, which and whose are called interrogative pronoun। Who, whom, what, which and whose are called interrogative pronoun। इसमें ध्यान रखेंगे बाबू, who and whom जो है ये प्योर प्रोनाउन है। क्या है हुआ? प्योर प्रोनाउन। प्योर प्रोनाउन का मतलब है ये प्रोनाउन का ही वर्क करेंगे। उसके अलावा what, which एंड हुज जो है बाबू ये एडजेक्टिव का भी वर्क करेंगे। किसका वर्क करेंगे? यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करेंगे। तो ये जो है व्हाट, विच एंड हुज ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है, जबकि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। हु और हुम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में यही तीन आपको पढ़नी है। तो देखिए टोटल 9 WH वर्ड है, 5 तो मैंने यहाँ आपको पढ़ा दिया, बच गए कितने? 4 बच गए। कितने? कौन कौन बच गए? वाई, वेन, वेयर, हाउ, ये बच गया ना। तो बुआ ये है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव वाई, वेन, वेयर, हाउ यह है इंटरोगेटिव एडवर्ब, और ये 5 जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उसमें से ही ये 3 जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब इसमें ध्यान रखना है
हु जो है सब्जेक्टिव केस है, कल सब्जेक्टिव केस बताए थे ना। सब्जेक्टिव केस का मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, किस रूप में, और हुम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, किस रूप में। लेकिन दोनों के लिए अच्छी खास बात यही है कि दोनों पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं, थिंग को नहीं, किसको, दोनों के दोनों पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो थिंग के लिए किसका यूज करेंगे, विच का। थिंग के लिए किसका यूज करेंगे, विच का। थिंग के लिए स्पेशली विच का यूज करेंगे। व्हाट का भी आप यूज कर सकते हैं थिंग के लिए, किसके लिए, हुज का यूज दोनों के लिए कर लेंगे, पर्सन और थिंग दोनों के लिए। क्लियर है बुआ। हु का मतलब होता है कौन, और हुम का मतलब होता है किसको। हु कोई काम करता है, जबकि हुम पे कोई काम होता है। हु कोई भी काम करेगा और हुम पे कोई भी काम होगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम करता है और ऑब्जेक्ट पे कोई काम होता है। जैसे मैं पीटूंगा तो मैं हु कहलाऊंगा, आपको पीटूंगा तो आप हुम कहलाएंगे। ओके, समझ में आई। इसी में से बुआ क्या करेंगे, इसी वर्ड को रिपीट कर दीजिएगा, इस पांचों को रिपीट कर दीजिएगा तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन का भी केस बिल्कुल वही रहेगा, कोई चेंज होने वाला नहीं। इसमें हम लोग 2 वर्ड ऐड करेंगे। कितने वर्ड ऐड करेंगे, 2 वर्ड। 5 के अलावा 2 और ऐड करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब एक जो है आपका मंडे का क्लास होगा, जिसमें प्रोनाउन टोटली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी। अब इसी के साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन लिख करके आज की क्लासेस को ऑफ करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा बुआ, हु, whom, what, which, whose, that and as, that and as, that and as, ये जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन है, are called relative pronoun। समझ में आ गई, इतना लिखे। नेक्स्ट क्लास जो मंडे की होगी उसमें इंटरोगेटिव, रिलेटिव और इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में कुछ और एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दिए जाएंगे। क्लियर है। वेट कीजिए बाबू, गुड इवनिंग, 10 मिनट में आ रहे हैं, बाय। क्या, WHOSE, हुज, क्या कुछ गलत हो गया क्या, WHOSE, हुज। हुज का मतलब होता है किसका। हाँ, अगर आप चाहें तो इस पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, शायद आप लोग कॉपी बंद कर दिए तो बंद ही कर लीजिए। ओके, नाउ ओके, सो राइट एग्जाम्पल। हुज बुक इज दिस। अच्छा बुआ, देख करके डिसाइड कीजिए यहाँ हुज एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन। एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक नाउन है, इसलिए हो गई ये एडजेक्टिव। अच्छा बुआ, दिस क्या है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, हुज इज दैट डॉग, हुज इज दैट डॉग। अब यहाँ पे बाबू बताइए, हुज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। और दैट क्या है, दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। ये तो आप जानते ही होंगे, हु आर यू। इसमें हु क्या है आपका, प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, यू कौन सा प्रोनाउन है, हाँ, पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। whom does she beat often, whom does she beat often, वह हमेशा किसको पीट देती है। ओके, तो यहाँ पे whom क्या है बुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव केस का और ये ऑब्जेक्टिव केस का। और सी क्या है बुआ, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है कौन, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट,
What are we thinking about? अब यहाँ पे बाबू what क्या है और we क्या है? What जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक बच गई which. which का प्रयोग सिलेक्शन के लिए आप कर सकते हैं, किसके लिए? सिलेक्शन के लिए, पर्सन और थिंग किसी भी सेंस में, जैसे which is your favorite player, which is your favorite player. mine is Mahendra Singh Dhoni. Now you can add yours, okay? Which is your favorite player? Mine is Mahendra Singh Dhoni. You can add your. मेरा तो भाई महेंद्र सिंह धोनी है, तुम अपना जोड़ लो, ठीक है? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो. वेरी गुड. यहाँ पे विच क्या हुआ? नाम विच क्या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. अच्छा बुआ योर क्या है? योर देखिए तो गौर से. possessive है. पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव क्या हुआ? क्योंकि इसके बाद एक नाउन है, इसलिए. समझ में आ गई? Yes, sir. ओके राइट. एंड नाउ बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. ओके.